Hello everyone. Our assets walk out from the door each evening. Make sure they come back again in the next morning. Yes, today we are going to start with a chapter called Staffing. The great line given by the CEO of Infosys, that is Narayan Murthy. He is really a great leader who tells us the entire chapters of staffing in this line only. He said, हमारे फर्म की, हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल एसेट हमारे एम्प्लॉइज हैं। वो हर रोज शाम को हमारी जॉब को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उस समय पर वी से दैट कि इट शुड बी आवर टाइम ऑफ लीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट हमें ये श्योर करना है कि वो नेक्स्ट डे जरूर आएंगे। हाँ, इसी लाइन के साथ मैं शुरू करता हूँ अपने चैप्टर को कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। एक सही बंदे को सही जगह पे पहुंचाना स्टाफिंग, राइट? So very simply, in a very simple words, we say that putting the right man on the right job is known as staffing, right? So, but this is putting the right man on the right job is not enough. We have to follow the series of steps to find out a competent employee. आपने सुना होगा कि कोयले की खान में से हीरा निकल कर आता है। बस यही तो करना है हमें स्टाफिंग में। Out of many people, out of many candidates who apply in our organization, we have to appoint a one. Out of many, we have to find out a one, that is single person. It is known as just finding out the diamond forest, right? So staffing is not alone. Staffing is itself a series of functions, as when we are following all the functions, then it is called staffing, right? So the most important thing is in staffing is employees. Staffing को हम की एलिमेंट बोलते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन का। सारे फंक्शंस बेकार अगर स्टाफिंग बेकार, सारे फंक्शन एक तरफ, स्टाफिंग एक तरफ। अगर स्टाफिंग गलत हो गया तो ये सब बर्बाद है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छे से अच्छे प्लान बना लो, एम्प्लॉय खराब तो प्लानिंग बेकार। अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लो, एम्प्लॉय खराब, स्ट्रक्चर खराब। सो हियर वी हैव टू लर्न कि हमारा एम्प्लॉय अगर चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप तक ले जा सकता है, और अगर वो चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बॉटम तक ले जा सकता है। सो बी श्योर दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर एम्प्लॉइज, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर एम्प्लॉइज, इट शुड बी द सिलेक्शन इज मेड विद ड्यू केयर that all the employees and whosoever you are selected is competent enough. He have a skills, he have a technology, he have a experience, he have a knowledge. Everything should be wonderful. If it happens wonderfully, then we say that everything should be on track. So staffing is a very important part for entire functions of management. Staffing is called the heart of the functions of management, as staffing is bad, the entire functioning of the management is also disturbed. वो भी क्या हो जाएगी? Disturbed हो जाएगी, right? So let us start with the needs and importance of staffing. हमें staffing की जरूरत क्यों है? Why we required staffing? Why we need a staffing? What is the method to do the staffing? So actually here we are going to learn about the needs of staffing. So the first is help in discovering the obtaining a competent personnel. Staffing हमें help करता है कि हम competent personnel को ढूंढ के लेकर आएंगे। Out of many we are selecting one, मतलब हजारों में से एक हीरा चूज करना है
हमें क्रीम फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट कॉम्पिटेंट पर्सनल को सर्च करना है, और वो कौन करता है? स्टाफिंग करता है, राइट। नाउ देन वी हैव द सेकंड स्टेप कॉल्ड इंश्योरिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। व्हेन आवर स्टाफ इज गुड, so the productivity is also very good. Why is it so? As if agar workers are good, then productivity is also increasing. And how is it possible? As if your worker is good, he have efficient or he is efficiency बहुत सी उसके अंदर efficient है, तो क्या करेगा? कॉस्ट को मिनिमाइज कर देगा। कॉस्ट को मिनिमाइज कर देगा मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, और जब कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, प्रोस्पेरिटी होगी। किसकी प्रोस्पेरिटी होगी? ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग ये भी इंश्योर करता है वॉट एवर द वर्कर्स दे आर सिलेक्टिंग, देयर शुड बी अ रेगुलर एंड कंटिन्यूटी में हमें क्या करना है? उसको अपने बिजनेस को चलाना है, सर्वाइवल रेगुलर होना चाहिए। आपको जो स्टाफ रखना है उसको कभी भी स्टाफ को ऐसे सोचकर रखना कि आज का काम करा लेते हैं कल हटा देंगे, नहीं। इट शुड बी अ प्रॉपर है ना, उसको प्रॉपरली हमको उसके अंदर उसको जगह देनी है, उसके साथ काम करना है, उसको सिखाना है, उसकी कुछ गलतियां हैं उसको इग्नोर भी करना है, राइट। ये सारी चीज़ों को हमें सीखना है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है तो हमें उसकी गलतियों को भी क्या करना पड़ता है? नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये भी स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। दूसरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना भी स्टाफिंग सिखाता है। जब हमारे पास सरप्लस मैन पावर होता है तो हमें ऑप्शन देता है कि हम ट्रांसफर या प्रमोशन कर दें उन लोगों का, सो दैट कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स का। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टाफिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द लास्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन ड्यू टू प्रॉपर प्लेसमेंट। एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है स्टाफिंग। और कैसे प्रोवाइड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन? इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर जिस चीज़ के लिए मैं आपके यहाँ पे आया हूँ आप मुझे वही वर्क मुझसे कराओगे, जिस चीज़ जो स्किल्स मेरे पास है अब वही वर्क अगर आप मुझसे करा रहे हो तो इट शुड बी वेरी सिंपल कि मैं बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ, तो आई एम जस्ट कम्प्लीटली इन अ जॉब सेटिस्फेक्शन मूड। मैं किस में आ जाऊँगा? जॉब सेटिस्फेक्शन में आ जाऊँगा, राइट। तो इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? जॉब सेटिस्फेक्शन कहलाता है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है हमारा स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, और भी कॉल्ड इट एज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, राइट। सो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस है, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो क्या है? इट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एंड व्हाट इज दैट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? जब भी हमारे यहाँ पे कभी वैकेंसी खाली होती है या फिर जब भी हमें देखना होता है कि हमारे पे वैकेंसी है, तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, we are just going to find out how many vacancies we have. We are just going department and jobs to jobs and find out how many persons are required and how many persons are still vacant. Means अगर सरप्लस है तो ट्रांसफर या प्रमोशन करेंगे, लेकिन अगर सरप्लस नहीं है तो एट दैट टाइम में हमें क्या करना होगा? जहाँ पे भी डेफिसिट आ रहा है उस डेफिसिट को पूरा करेंगे। कब? हम अपने वैकेंसीज को निकाल कर। मतलब रिक्रूटमेंट करने से पहले स्टाफिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वही क्या कहलाता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर कहलाता है। और एस्टिमेटिंग मैन पावर में हम लोग क्या करते हैं? जितना भी हमारा जो रिक्वायरमेंट मैन पावर का है उसे फाइंड आउट करते हैं कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की वैकेंसी खाली है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट देंगे, रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, राइट। सबसे पहला जो स्टेप हुआ क्या हुआ? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर, इसके बाद हम लोग जाते हैं वो क्या है? इट शुड बी कॉल्ड the second step, and the second step we call it as, it is a very simple part called recruitment. Recruitment is called the positive step. Recruitment को हम क्या बोलते हैं? Positive step कहते हैं। And why recruitment is called positive step? It is only called positive step because number of persons are applied in the organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पर्सन आते हैं और अप्लाई करते हैं, और जब नंबर ऑफ पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन आके अप्लाई करेंगे तो वी से दैट इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। तो रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एन इन्विटेशन टू द कैंडिडेट्स। हमने पहले वैकेंसीज फाइंड आउट करी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों की वैकेंसी खाली है। उसके बाद जैसे वैकेंसी को फाइंड आउट किया गया तो हम लोग बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कितने लोगों की वैकेंसी को हमने जो निकाला उसमें हम लोगों को लोग चाहिए, हम इन्विटेशन भेजेंगे उन सबके पास जो लोग उसके लिए एप्लीकेबल हैं, जो उसके लिए एलिजिबल है, राइट। सो where in this step we have to find number of applicants to invite number of applicants to apply in the organization, right. The third is selection. What is that? Selection. In this
कि when the persons are coming to the organization, when the candidates are coming to the organization, the next step we are going to follow is selection. क्या है next step हमारा? Selection. In this we are just finding out the best person out of many. बहुत सारे लोगों में से एक हीरा चूज करना, एक डायमंड लेकर आना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं. एंड इट इज नॉट जस्ट लाइक कि एक 15 मिनट में हमने फटाफट सिलेक्शन कर लिया. नो, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप. ये भी एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिसको हम आगे बढ़ने वाले अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे. उससे हम सिलेक्शन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट जो हमें सबसे बेस्ट लगा. और जैसे ही सिलेक्शन होता है वी आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. एंड व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग द मैन ऑन द राइट जॉब, मीन्स उसको सही जगह पे पहुंचाना. कहाँ पे वो काम करेगा? द पर्सन यू आर सिलेक्टेड. तो वी आर जस्ट गोइंग टू शो द प्लेस टू दैट पर्सन कि वेयर ही हैव टू सिट एंड फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू डू वर्क. राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट. along with that orientation is what? Orientation means उस एम्प्लॉय को सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनसे मिलवाना, उनसे इंट्रोड्यूस कराना कि भाई ये आपके मैनेजर हैं, कल से ये आपको संभालेंगे, ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप लोगों को कोऑपरेट करना है. दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. राइट? आफ्टर प्लेसमेंट एंड रोटेशन इज डन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग मीन्स टू डेवलप दी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स की टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना, उनको ट्रेन करना अबाउट द टेक्निकल स्किल्स के लिए, इसे ट्रेनिंग बोलते हैं. एंड डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ करना, हाउ टू सेट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक, हाउ टू वर्क, हाउ टू ईट, एंड योर पेशेंस, योर टेम्पर, एवरीथिंग, योर रिएक्शंस, योर एक्सप्रेशंस, दिस इज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ, ये किसमें आता है हमारा? ये आता है हमारा डेवलपमेंट में. राइट? Along with that, when training and development is going there, तो वैसे हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो यहीं तक चलता है, फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं. तो along with that we say that कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है, जहाँ पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो वर्कर है उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो ढंग से काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, सिर्फ उतना ही करता है जितना हमने कहा है या कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट्स लगाता है. ये सारी चीज़ें को डिसाइड करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है. After that we are going for the promotion and career planning. Promotion and career planning का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि we are just providing them कि after performance appraisal we are providing them promotion. हम लोग promotion देते हैं, लाइक कि हम जिस हिसाब से जिसने काम करता है उसके हिसाब से हमें उसको जॉब प्रोवाइड करनी है. प्रमोशन भी दे सकते हैं, प्रमोशन भी दे सकते हैं, ट्रांसफर भी दे सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है किसके अकॉर्डिंग? परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से. राइट? और जैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा तो लास्ट स्टेप आता है कॉम्पनसेशन, कि अलॉन्ग विद दैट हमने जिसको जॉब प्रोवाइड कराई है, जो भी वर्क वो कर रहा है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल शो कर रहा है, क्या उसके हिसाब से उसको उसकी सैलरी मिल रही है? दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन. Along with that, these are the steps that we have to follow for doing staffing. But a series of steps is already left behind us, and we are just going to learn these steps in the next video. Thank you, students. Make sure you share this video to your friends also. Like, share, subscribe करना मत भूलिएगा. Right? Okay. Goodbye.